آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 24 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بابا جی کو جلدی تھی اس لیے وہ چلے گئے۔ اس روز شاہ صاحب بھی بڑے مسرور تھے۔ تم نے خاصی دیر لگا دی واپس آنے میں، شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں دن بھر کی ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ بابا تیلے شاہ سے کیا بات چیت ہوئی۔ اگر تم وقت پر آ جاتے تو تمہیں ایک کیس میں اپنے ساتھ لے جاتا۔ کیسا کیس؟ میں نے استفسار کیا۔ پولیس پھر آ گئی تھی؟ نہیں یار، وہ ہنس دیے۔ ہم لوگ جب کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں تو اسے کیس بولتے ہیں، وہ بتانے لگے۔ ادھر ساتھ ایک بڑے قصبے میں ملک صاحب کے ایک دوست کی بیٹی پر جن قابض ہو گیا تھا۔ لڑکی بھی اسی گرفت میں آ چکی تھی اور وہ اس جن کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بابا جی کی موجودگی کے بغیر اس لڑکی کو جن سے آزاد کرا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ شاہ صاحب کہنے لگے، یہ بڑی عجیب اور متنازع سی بات ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اور اس کو کسی اور وقت پر اٹھا دیتے ہیں کہ جنات اور انسانوں میں شادیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں۔ فی الحال اس لڑکی اور جن کی داستان سن لو جو شادی پر آمادہ تھے، مگر میں نے یہ خلاف فطرت اور خلاف شریعت حرکت سرزد نہیں ہونے دی۔ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن جب سے وہ جن اس پر عاشق ہوا تھا اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پہلے پہل تو اس کے گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی لڑکی یکا یک باغی کیوں ہو گئی ہے، حالانکہ یہ شادی اس کی پسند کے لڑکے سے ہو رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ روز بروز پیلا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور وہ کھوئی کھوئی سی مدہوش سی نظر آتی۔ ماں کو شک ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس نے بیٹی سے بہت پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ماں اس کی ٹوہ میں لگ گئی۔ اس نے بیٹی کے معمولات پر نظر رکھی۔ اس نے غور کیا کہ وہ رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے اور اس کے سونے کے معمولات و عادات بدل رہی ہیں۔ لڑکی پہلے کمرے سے باہر گھر کے باقی افراد کے ساتھ صحن میں سوتی تھی۔ اسے اندر سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن اب وہ باہر سونے سے گھبراتی اور کمرے کے اندر اکیلی سوتی تھی۔ اس کمرے کے پیچھے ایک پرانی طرز کا سٹور نما کمرہ تھا۔ ایک روز اس کی ماں اس کے پہرے پر بیٹھ گئی۔ گھر کے لوگ جو ہی سوئے وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور اندر کی سنگن لینے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ بیتی تو اسے محسوس ہوا کہ اندر کوئی نہایت بھاری بھرکم آواز والا شخص دبی زبان میں بول رہا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے پورا کمرہ اور سٹور چھان مارا مگر اندر کوئی مرد دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ اس نے بیٹی کو ہلا جلا کر اٹھایا تو اس نے خواب دیدہ حالت میں نظریں کھولی۔ ماں اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ بیٹی بھرائی آواز میں بولی، جا ماں سو جا، مجھے بھی سونے دے۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی۔ دوپہر کے وقت وہ اٹھی تو اس کی حالت اب نارمل تھی۔ ماں نے بڑی رازداری سے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ عورت نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی نہایت لاغر ہو گئی ہے۔ اس نے کئی راتیں لگاتار بیٹی کی جاسوسی کی۔ اس روز اس نے بیٹی کو بڑی واضح آواز میں کسی سے شکایت کے لہجے میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم 2 دنوں سے کہاں تھے؟ کسی نے بھاری بھرکم مردانہ آواز میں کہا۔ میں بہت دور اپنے گھر والوں سے ملنے چلا گیا تھا۔ تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ جواباً وہ بڑے پیار بھرے انداز میں بولا، میں تم سے دور کہاں جا سکتا ہوں؟ دیکھو میں تمہارے لیے یہ انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی پہن کر دیکھو تمہیں کتنی سجتی ہے۔ اس کی بیٹی انگوٹھی پکڑ کر بولی، واقعی بہت خوبصورت ہے، تمہاری آنکھوں کی طرح چمک ہے اس میں۔ نہیں، یہ چمک تمہارے چہرے کی چاندنی کے آگے مان پڑ جاتی ہے۔ تم وہ ہیرا ہو جس کی تلاش میں برسوں بھٹکتا رہا ہوں۔ چل جھوٹے، تم جن لوگ بڑے ہی جھوٹے دغا باز اور باتونی ہوتے ہو، بالکل ہمارے مردوں کی طرح عورتوں کو جھانسا دیتے ہو۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اور اس شخص نے کیا کہا تھا وہ عورت سننے کی تاب نہ لا سکی۔ اس پر یہ راز کھل گیا تھا کہ وہ مرد دراصل ایک جن ہے جو اس کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پاک باز عورت تھی، اللہ اور قرآن پاک پر پورا یقین رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے چاروں کوئی اور آیت الکرسی پڑھی اور کمرے پر پھونک مار دی۔ جواب میں اندر سے وہ جن اس قدر اذیت ناک انداز میں چیخا کہ پورا کمرہ اس کی دہشت سے تھرا گیا اور سین میں سوئے مرد اور عورتیں سبھی جاگ پڑے۔ جن نے بڑی غلیظ گالی دی اور چیخ کر لڑکی سے بولا، تیری ماں نے یہ اچھا نہیں کیا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور اسی لمحے لڑکی دندناتی باہر آئی اور ماں کا گریبان پکڑ کر چلائی،
तूने क्या किया है? वो क्यों तड़पा है? बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। घर के मर्दों ने फौरन लड़की को काबू में किया, मगर उसमें जिन्नाती कुव्वतें दाखिल हो चुकी थीं। औरत बदहवास और खौफजदा होकर बेहोश हो गई थी। इससे कतई तवक्का नहीं थी कि उसके दम करने का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है। सारी सूरत हाल घर वालों पर खुल गई थी। औरत ने जिन और बेटी के दोस्ताना ताल्लुकात का अकीदा तो ना खोला, अलबत्ता ये कहा कि वो इसे गुमराह कर रहा है। पूरा घर मोहल्ले के मौलवी साहब और पीरों फकीरों की तरफ भागा। इस दौरान रोजाना घर में आयत करीमा पढ़ाया जाने लगा। इसका ये फायदा हुआ कि जितने रोज आयत करीमा पढ़ाया जाता रहा, वो अफरीत नुमा जिन दोबारा नहीं आया। मगर इनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। दिनों में सूखा कांटा हो गई, चेहरा स्याह पड़ गया और उससे चलना फिरना दोबर हो गया। ऊपर से मुख्तलिफ आमिलों और पीरों फकीरों ने इसे तावीज पिला पिलाकर पागल कर दिया था। फिर आज इसका बाप हवेली आ गया। मैंने उसकी दास्तान सुनी। मैं इसके साथ उसके घर गया। वो 5.5 फुट की अच्छी नैन नक्श वाली लड़की थी, लेकिन उसकी हालत अब इंतहाई बदतर हो चुकी थी। मैंने लड़की से सवाल जवाब किए तो वो कहने लगी, शाह साहब आप जो मर्जी कर लें, मगर ये बात तय है कि मैंने उसके बगैर नहीं रहना। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो बेकरारी से उठ पड़ी थी। मैं इसे शादी करूंगी। उसकी माँ परेशान होकर मेरा मुंह तकने लगी। मैंने उसे समझाया कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मेरी बात जल्द समझ जाओगी। इधर आराम से बैठ जाओ और गौर से मेरी बात सुनो। वो बेदबी से बैठ गई तो मैंने उस दौरान एक अमल पढ़ा और उसके गिर्द हिसार कायम कर दिया और कहा, तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगी। फिर मैंने इसे समझाया, तुम कहती हो कि उस बदजात जिन से तुम शादी करना चाहती हो। मेरी बात याद रखो लड़की, इस्लाम में किसी औरत को जिन के साथ शादी की इजाजत नहीं है। वो तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम्हारा खून चूस रहा है। वो शैतान है, शैतान। वो आग से बना है और तुम मट्टी से। तुम कभी गर्म कोयले को कागज पर रख कर देखो, जहाँ रखोगी वो इसे धीरे धीरे जला डालेगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। वो जिन ज़्यादा आग है। आग इंसान की दुश्मन है। ये जिन्नात हो या शैतान, इनकी इंसान से अजल से दुश्मनी है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से सख्ती से मना फरमाते हैं। मैंने पहले इसे समझाया तो वो सटपटाकर बोली, वो आग नहीं है मेरी बहन, वो आग ही है, मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं है। वो राहत और सरूर है, ठंडक और प्यार का समुंदर है। लड़की मखमूर लहजे में बोली और उंगली में पहनी अंगूठी को सहलाने लगी। अंगूठी पर नजर पड़ते ही मैं चौंका और उसकी माँ से पूछा, ये अंगूठी इसके मंगेतर ने दी है? माँ के बोलने से पहले ही लड़की बोली, वो मस्कीन मुझे चांदी की अंगूठी लेकर नहीं दे सका तो हीरे की ये अंगूठी कहाँ से खरीद पाता। उसके लहजे में तफाखुर था। ये तो मेरे जिनजादे ने दी है। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उस जिन ने लड़की को पूरी तरह अपने काबू में किया हुआ है। मैंने लड़की से कहा, क्या मैं ये अंगूठी देख सकता हूँ? मुझे लगता है ये असली हीरे की नहीं है। उसकी भवें तन गईं। सख्त लहजे में बोली, तुम्हें हीरे की पहचान क्या होगी? मुझे पत्थरों की पहचान है। मैंने इसे समझाया। दरअसल मैं उस अंगूठी को अपनी दस्तरस में करके उस जिन तक पहुंचना चाहता था। ये जिन्नाती कमजोरी होती है। जब वो कोई शय तोहफे में किसी इंसान को देते हैं तो इसमें इनकी मानूस खुशबू शामिल हो जाती है। इस तरह इन्हें ये एहसास रहता है कि वो अपने मामूल के साथ साथ रहते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे अंगूठी हासिल की और फिर इस पर दम करके अपने पास रख ली। लड़की सटपटाई और हिसार से निकलकर अंगूठी लेने के लिए मुझ पर झपटी, मगर मैंने इसे हिसार में ही बंद कर दिया और फिर धूनी सुलगाकर और पानी दम करके इसके ऊपर छींटे मारे। उसके बाद मैंने उसको ज्यादा मोहलत नहीं दी। मैंने अंगूठी को सुलगती धूनी के अंदर फेंक दिया तो कुछ ही देर बाद वो जिन आग बगोला होकर हाजिर हो गया। लड़की की हालत बिगड़ गई और इसका पीला चेहरा सुर्ख हो गया। आंखें खून में उगलने लगी। उसकी आंखों की पुतलियों में मुझे उस जिन का असली चेहरा नजर आने लगा। फिर मुझे ये मालूम करने में देर न लगी कि उस जिन की हकीकत क्या है। मैंने हस्बे रिवायत उससे मुकालमा शुरू कर दिया। कोई भी अच्छा आमिल सबसे पहले जिन्नात का हदूद दरबा और इनके मकासद मालूम करता है, फिर इसे मौका देता है कि वो मगलूब की जान छोड़कर चला जाए। अगर वो सरकिश और हट दरम हो तो फिर आमिल इससे मुकाबला करता है और फिर इसे अपने काबू में कर लेता है। इस मौका पर अगर वो जिन आमिल से ताकतवर हो तो फिर आमिल की खैर नहीं होती। ना सिर्फ आमिल बल्कि मगलूब के घर वालों को भी नुकसान पहुंचता है। मैंने उससे उसका नाम पूछना चाहा तो वो जख्मी दरिंदे की तरह डगराया और बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस पर वो मुझे धमकी देकर बोला, मैं जहाँ भी रहता हूँ, तुम्हें इससे क्या? याद रखो, अगर तुमने कोई अमल पढ़ा
तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा और तुम्हें भी और इस बुड्ढी को भी। लड़की की माँ सैम का दीवार से लग गई। मैंने दमशुदा पानी उस पर छिड़का और जिनसे मुखातिब हुआ, बस एक मौका तुम्हें दे रहा हूँ, लड़की की जान छोड़ो और चले जाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम्हें कैसे पता चल सकता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ? वो खूंखार नजरों से मुझे देखते हुए बोला, यहाँ रहने वाले जिन्नात मेरे नाम से आगाह हैं। तुम्हारा रंग और बू इस बात को जाहिर करती है कि तुम्हारा पंजाब से ताल्लुक नहीं है। मैं पंजाब के जिन्नात की बू पहचान लेता हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जवाब में वो मुझे घूर कर रह गया। मैंने इसे ज्यादा मौका नहीं दिया और इस पर घेरा तंग करने के लिए वजीफा पढ़ने लगा और जिन्नात को तस्कीर करने वाला अमल पढ़कर इसे हिसार के अंदर ही कैद कर लिया। वो बहुत बिन बनाया, चिल्लाया, धमकियां देता रहा, अकड़ दिखाता रहा, लेकिन मैंने इसे बेबस कर दिया। वो सरकश जिन था, जवाज के बावजूद जल्द काबू में आ गया। उसकी उम्र अभी 70 साल थी और ताज़ा ताज़ा बाले हुआ था, इसलिए मेरे अलूम के आगे ज्यादा देर तक न ठहर सका। मैंने इसे लड़की के अंदर से बाहर निकाला और धुनी तेज करके इसे धुएं के अंदर कैद कर दिया। अब वो अपनी असल शक्ल में मुर्दा छिपकली की तरह धुएं में बैठ गया था। औरत सिर्फ उसकी आवाज सुन सकती थी। वो इसे देखती तो चक्कर खाकर गिर जाती। लड़की बेहोश होकर हिसार में गिर गई थी। औरत उसकी तरफ बढ़ी तो मैंने इसे रोक दिया। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो? मैंने पूरे जलाल के साथ इससे पूछा। वो गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़ने लगा और बोला, आपको यसु मसीह का वास्ता, आपको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे छोड़ दें। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम बदकिरदार और काफिर हो। तुमने एक मुसलमान लड़की को तबाह किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहने लगा, मैं ईसाई हूँ और सखर से आया हूँ। मैं लाहौर के गोरा कब्रिस्तान में अपने अजीजों से मिलने आया था। इनकी पूरी पग्गी यहाँ कई सालों से रह रही है। एक रोज मैंने इस लड़की को उसके मंगेतर के साथ लाहौर के बाग जिन्ना में देखा। मैं तब इस पर बैठ गया। मुझे इस लड़की की खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया भी कि इसे खराब ना करूं, लेकिन मैं बहक गया था। मैंने उस काफिर जिन को गर्दन से पकड़ा और एक दमशुदा कील उसकी पीठ में ठोंक दिया। वो दहशतनाक चीख मारकर बोला, हाय मैं मर गया, तुमने मुझे अपाहिज कर दिया है। फिर मैंने धुनी को तेज किया और इसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद बहुत से वज़ाइफ पढ़े, कमरे को पाकीज़ा किया और सदका खैरात किया। किसी जिन, चाहे वो काफिर ही हो, इसे मारने के बाद आमिल को बहुत से हिफाजती वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं। आधा घंटा तक मैं अपने वज़ाइफ में मसरूफ रहने के बाद लड़की को होश में लाया। इसे दमशुदा पानी और तावीज़ दिया, जिनके असरात ने इसे कई बीमारियों में मुब्तला कर दिया था। मैंने उसकी माँ को समझाया कि इसे ठीक होने में कम से कम 3 माह लगेंगे। मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? शाह साहब खामोश हुए तो मैंने तजस्सुस के मारे सवाल किया। मैं परसों दोबारा वहाँ जाऊँगा, या हो सकता है वो लोग खुद ही कल इधर हवेली में आ जाएं। शाह साहब के चेहरे पर बड़ी जानदार और मायने खेज मुस्कुराहट बार बार नमूदार हो रही थी। आप बहुत खुश हैं? मैंने इनकी अंदरूनी कैफियत को भांपते हुए पूछा। खुश तो हूँ, वो मुस्कुराए बिना ना रह सके। तुम्हारे चाचा जी भी अब नरम हो गए हैं। क्या मतलब? मैंने कहा, पत्थर में गुलाब कैसे खिल सकता है? ये लड़की इनके दोस्त की बेटी थी। उसने इन्हें मेरे मुतल्लिक बताया है। मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे ज़हन से जैसे मनोबोझ उतर गया। अब मैं सोचने लगा कि जुलेखा भी तो एक सहरज़दा लड़की है। अगर किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग से मशवरा करके इसको भी शहरी असरा से आज़ाद करा लिया जाए तो मुमकिन है इसकी शख्सियत बहाल हो जाए। इस वक्त भी मेरे दिल में शाह साहब के बारे में बदगुमानी भरी हुई थी। ये बात अपनी जगह दुरुस्त थी कि मैं इनकी पुरस्कार कुव्वतों से मुतासिर था और इसी वजह से इनकी इज्जत करता था। लेकिन जुलेखा का मामला जब भी मेरे सामने आता, मेरी रूह की बेकली बढ़ जाती थी और मुझे चाचा जी की तरह एक खलिश और बेसुकूनी का एहसास होता। मेरा दिल बार बार ये कहता था कि कहीं ना कहीं इस सच्चाई में खोट है। मेरे लिए ये पहचाना बहुत मुश्किल था। उस वक्त मैंने दिल में तय कर लिया कि टाहली वाली सरकार के बजाय बाबा तीले शाह के सामने ये मामला रखूंगा और इनके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करूंगा कि मुझे मेरी जुलेखा वापस लौटा दें, उसे तागूती कुव्वतों से आजाद कर दें। मेरे ज़हन से बोझ की भारी चादर तो सिरक गई थी, मगर दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया था।